ملتان کے علاقے قاسم بیلا بستی کیمپ والا محمد پور گوہا میں بارش اور پانی کے باعث پتھروں والا بند ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹنے سے بڑی فصلیں برباد ہو گئیں۔ علی ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان اور اس کے گرد و نواح میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے مختلف علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بھی بڑھ گیا۔ ملتان کے علاقے قاسم بیلا بستی کیمپ والا محمد پور گھوٹا میں پتھروں والا بند پانی کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹنے سے پانی قریبی فصلوں میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے تیار فصلیں بھی برباد ہو چکی ہیں۔ پانی مزید بڑھنے کے باعث محمد پور گھوٹا میں پانی پہنچنے کا خدشہ ہے۔ پانی بڑھتا جا رہا ہے، اگے بھی ایسی بند مارا ایسی اپنے خرچے دے بند اگے بھی ٹوٹ گیا، نقصان ہو گیا، ہوں بھی بند ٹوٹ گیا ہے، ہوں بھی آندن کچھ چھڑے گندے نہیں دے سارا کچھ عربی آئی ساری کوئی 35 وہ بڑھ گئی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ اپنی مدد آپ کے تحت سیلاب سے بچاؤ کے لیے بند بنایا تھا، جو اب ٹوٹ چکا ہے۔ انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کو نوٹس لینا چاہیے، ورنہ پانی ہمارے گھروں تک پہنچ جائے گا۔ ہمارا نقصان ہو، یہاں پہ کسی حکومت کی طرف کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، ہم ویٹ کر رہے ہیں کوئی ہماری کوئی مدد کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں پہ گھر وغیرہ پہ پانی آنے کے چانس، ہمیں نقل مکانی کرنے پڑے گی، ہمارے پاس کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سر چھپانے کی جگہ مل جائے۔ اہل علاقہ نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ جلد ہماری مدد کرے۔ کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ آپ کو بتائیں کوہ سلیمان میں بارشوں سے نالا سانگھڑ میں طغیانی آ گئی ہے۔ نالا سانگھڑ میں 20,000 کیوسک ریلا پہنچ گیا ہے۔ ایسے پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے عظمت بزدار۔ بالکل، اس وقت میں نالا سنگھڑ پر موجود ہوں۔ کوہ سلیمان کے علاقہ تمن بزدار اور بلوچستان سے جو ملکہ علاقے ہیں، رات سے وہاں پہ بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے نالا سنگھڑ میں اس وقت طغیانی ہے اور 20,000 کیوسک کا ایک بڑا ریلا اس وقت جہاں سے گزر رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان انتظامیہ کی جانب سے اس وقت الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ یہ جو پہاڑی ندی نالے ہیں، برساتی نالے ہیں، ان میں طغیانی کی وجہ سے ان سلسلے کو مانیٹر کیا جائے۔ تو جہاں پہ اس وقت جو 20,000 کا ریلا جہاں پہ پہنچا ہے، اس سے پیچھے نالا سنگھڑ اور نالا لینی میں بھی پانی کا ایک بڑا ریلا پیچھے سے آ رہا ہے، جو کہ جہاں پہ تونسا شریف کے 25 ایسے موازیات ہیں جن میں کاشت فصلات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 1 ارب سے زائد کے جو منصوبے اس وقت جہاں پہ زیر تعمیر ہیں، جن میں سپورٹس اسٹیڈیم ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ تحصیل کمپلیکس بن رہا ہے، منی زو ہے اور ٹیپٹا کالج ہے، وہ اس سے قبل سپورٹس اسٹیڈیم کو نقصان پہنچا چکا ہے، اس کی دیوار 2 دفعہ گرا چکا ہے۔ تو نالا سنگھڑ میں طغیانی کی وجہ سے جہاں پہ نقصان کا اندیشہ بدستور موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس پانی کا جو رخ تھا دیہاتوں کی جانب موڑ دیا گیا تھا، خاص کر مندرانی، بوہڑ، ہیرو، مکول کے جو دیہات ہیں ان کو شدید خطرات لاحق ہیں، جہاں پہ پانی ان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سوکڑ کا جو علاقہ ہے وہاں بھی اس کا پانی داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو قریبی بستیاں ہیں ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس سے قبل جو 3 روز پہلے جو بارش کی وجہ سے اس نالے کا جو پانی تھا وہ منگروٹھا میں بھی داخل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے 25 کے قریب ایسے کچے گھر تھے جو کہ اس میں کافی نقصان پہنچا تھا، ان کی چھت دیواریں گر گئی تھیں۔ تو آج یہ ایک اور ریلا جہاں سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف منگروٹھا، سوکڑ اور ہیرو، مکول کے دیہات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، جہاں پہ جو زیر تعمیر منصوبے ہیں ان کو بھی ان سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ انتظامیہ کو جہاں پہ فوری طور پر نقصان کا اندیشہ موجود ہے۔ بہت شکریہ عظمت بزدار، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ علی پور میں موسلادھار بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بارشی پانی سے گلیاں، محلے، سرکاری دفاتر تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ تحصیل آفس کی عمارت اور دفاتر پانی میں ڈوب گئے۔ دفاتر میں موجود تحصیل کے اراضی کا قیمتی ریکارڈ پانی میں بہنے لگا۔ اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں نمائندہ روحی رانا عمران سعیدی۔ تحصیل علی پور میں جو ہے مسلسل 3 گھنٹے موسلادھار بارش جو ہے وہ ہوتی رہی۔ اس کے بعد جو ہے گلی محلوں میں، سڑکوں پر جو ہے پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا اور مکانوں میں، گھروں میں جو ہے پانی داخل ہو گیا۔ دکانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بارش کا پانی ہے وہ اس وقت جو ہے جتنی بھی یہاں پر جو سرکاری املاک ہیں، دفاتر ہیں، ان میں بھی جمع ہوا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں تحصیل آفس میں، جہاں پر جو ہے یہ تحصیلدار کا آفس ہے۔ اس کے ساتھ یہ پیچھے جو آپ میرے حق میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے پٹوار خانہ ہے، یہاں پر تحصیل کے جو پٹواری ہیں وہ آفس ورک کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور عدالت ہے جو تحصیلدار کا آفس ہے، وہ یہاں پر بیٹھتا ہے۔ اس آفس کی اگر میں بات کروں تو یہ خاصی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ تحصیل بھر کا جو زرعی جو ریکارڈ ہے، زمینوں کا ریکارڈ ہے، وہ اس آفس میں موجود ہے۔ یہاں پر 2 سے 3 فٹ جو ہے پانی جمع ہو چکا ہے۔ ٹی ایم اے کی جو مبینہ جو غفلت ہے، اس کی کارکردگی جو ہے اس کا پول کھل کر سامنے آ چکا ہے۔
बारिश के बाद जो है यहाँ पर निकासी के लिए कोई भी जो है इंतजामिया नजर नहीं आ रही। यहाँ का जो रिकॉर्ड है वो भी इस वक्त पानी में तैर रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल जो तहसील ऑफिस है पानी में डूब चुका है और उसके ऑफिस के कमरों के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है। इंतजामिया की अगर बात की जाए, असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर की अगर बात की जाए, मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। राना इमरान सईदी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जहां मूसलाधार बारिश से शाहराह तालाब का मंजर पेश करने लगी, नाकारा सीवरेज सिस्टम से गंदा पानी शहरियों के घरों में दाखिल। मूसलाधार बारिश ने हर तरफ जलथल कर दिया। शहर की रोड्स, गलियां, नालियां, नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। ऐसे पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे इब्रार राना। हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में, जहां पर आज बारिश हुई है और बारिश की वजह से पूरे शहर में जलथल हुई है और गलियां हैं, रोड्स हैं, नालियां हैं, नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं और जतोई शहर की तमाम शाहराहों पर पानी है, पानी जमा हो चुका है और वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है और शहरियों को आमदोरफ्त में बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि नकारा सीवरेज सिस्टम की वजह से अरसा दराज से शहरियों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है और उनकी जिंदगी अजीरन हो चुकी है। और मैं यहाँ पर शहर की मेन शाहरा पे मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों को बहुत ज्यादा आमदोरफ्त में परेशानी है और मुल्क आबादी जितने भी यहाँ पर साथ साथ बैठे हुए हैं, इस पानी की वजह से उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या सिचुएशन बारिश के बाद फेस करनी पड़ रही है। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो म्यूनसिपल कमेटी है इसकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इन्होंने यहाँ पे सेवरेज के निज़ाम को बिल्कुल जो है ना नकारा से नकारा तर कर दिया है। बारिश थोड़ी सी अभी बारिश आई है और उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो है ना नदी नाले बने हुए हैं पूरे। बुजुर्ग हज़रात नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते कहीं भी और घरों में पानी इस वक्त दाखिल हो चुका है, पानी आगे जा ही नहीं रहा। हमारी जो है TMA अफसरान जो हैं, जो MNA MPA हैं यहाँ के, उनको हमारी रिक्वेस्ट है ज़ाती तौर पे मेहरबानी करके इसकी तरफ भी थोड़ा सी तवज्जो दें ताकि जो है ना आवाम जो है सुख का सांस ले सके और ये सीवरेज सिस्टम को जो है ना बेहतर किया जाए यहाँ पे। जी जैसा कि आपने शहरी की जुबानी सुना है कि इनका यही कहना है कि ये अरसा दराज किया जाए। बहुत शुक्रिया इब्रार राना, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। शुजाबाद में नाकिस निकासी आप से शहर के मेन रोड तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहर भर में कहीं भी म्यूनसिपल कमेटी एहलकार ही मौजूद नहीं, जबकि डिस्पोजल में जनरेटर की सहूलत भी मौजूद। मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से जनरेटर नहीं चलाया जा सका, ऐसा बताना है म्यूनसिपल कमेटी के अमले का। तो आपको बता रहे हैं शुजाबाद में नाकिस निकासी आप से शहर के मेन रोड तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहर भर में कहीं भी म्यूनसिपल कमेटी एहलकार मौजूद नहीं है। डिस्पोजल में जनरेटर की सहूलत भी मौजूद नहीं है। मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से जनरेटर नहीं चलाया जा रहा, म्यूनसिपल कमेटी के अमले का ऐसा बताना है। तो आपको अपडेट करें शुजाबाद से, जहां नाकिस निकासियाब से शहर के मेन रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहर भर में कहीं भी म्यूनसिपल कमेटी एहलकार मौजूद ही नहीं। डिस्पोजल में जनरेटर्स की सहूलत भी मौजूद है। मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से जनरेटर नहीं चलाया जा सकता, म्यूनसिपल कमेटी के अमले का ऐसा कहना है। करेंगे लिया का, जहां लिया और गिरदोनवाह में बारिश, शहर समेत चौक आजम, कोट सुल्तान के गली मोहल्ले और सड़कें पानी से भर गईं। ये रिपोर्ट देखिए। जिला लिया में होने वाली बारिश ने हर तरफ जलथल एक कर दिया। जहां गर्मी का जोर टूटा और मौसम खुशगवार हो तो वहीं गली मोहल्ले पानी से भर गए। बारिश के बायस लिया शहर की सड़कें, बाजार और रिहायशी मोहल्ले झीलों का मंजर पेश करने लगे। बारिशी पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। चौक आजम में बारिश ने MM रोड को नदी में बदल दिया, जिससे ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया। घंटों गुजरने के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी ने पानी निकालने के लिए इकदाम न किए। शहरी इंतजामिया पर तनकीद करते रहे। 30 से 35 मिनट की ये बारिश हुई है, तो 30 से 35 मिनट के अंदर ये देख ले कि हाल इसका दरिया सिंध से भी ज्यादा हुआ बड़ा है। तो लिहाजा इंतजामिया से गुजारिश है कि इसका सद्देबाब किया जाए, निकासी का इंतजाम किया जाए। बारिश ने कोट सुल्तान, फतेहपुर और करोड़ समेत दीगर शहरों के गली मोहल्ले पानी से भर दिए। शहरियों ने मुतालबा किया कि पानी निकालने के लिए इंतजामिया बर वक्त इकदाम करे। म्यूनसिपल कमेटी लिया के जिम्मेदारों का कहना था कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है, जबकि तमाम डिस्पोजल फाल हैं। कैमरा टीम के हमरा जाहिर सरफराज रोही लिया। मुल्तान शहर की बात करेंगे। मुल्तान शहर में जारी रहने वाली बारिश के बाद मौसम ने अंगड़ाई ले ली। खुशगवार मौसम को यादगार बनाने के लिए मुल्तान के आर्टिस्ट भी सरगर्म है। मुल्तान में फनकारों ने घरों में चाय की बैठक सजा ली। फनकार मौसम के मजे के साथ दोस्तों से खुशगपियों में मसरूफ रहे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही वसीम शहजाद। जी बिल्कुल, शहर ओलिया में जारी रहने वाली बारिश के बाद मुल्तान के आर्टिस्टों ने भी अपने घरों में बैठक सजा ली है और ये
पुरमसरत मौके पर यहाँ पर जो मुल्तान के आर्टिस्ट हैं वो चाय की चुस्कियों के मजे ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और आर्टिस्ट भी मौजूद होंगे जिनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। मुल्तान में मौसम में अगर हम देखें तो इस हवाले से बहुत कम इस तरह का मिलता है। आज मौसम बहुत खूबसूरत है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, मौसम तो आज वाकई बहुत खूबसूरत है। इसलिए हमारी जो मेरी मतलब जूनियर बच्चियां हैं जो वो मेरी रिस्पेक्ट करती हैं, इज्जत करती हैं, उन्होंने मुझे यहाँ दावत पे बुलाया है कि आप आए और हमारे साथ बैठ के ये टाइम गुजारे। हमने कोई पकोड़े वगैरह भी बनाए हुए हैं और मीठी रोटियां भी बनाई हुई हैं और बहुत मजा आ रहा है। बाहर बारिश हो रही है और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, बारिश के बाद जो है इंजॉय किया जा रहा है। हमारे साथ दीदार मुल्तानी भी मौजूद हैं। क्या कहेंगी, बहुत कम टाइम मिलता होगा शोज में मसरूफियत के बायस कि अपने दोस्तों में वक्त गुजारा जाए। आज हल्की फुल्की बारिश भी मुल्तान में हुई है, मौसम भी खूबसूरत है, कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, बारिश का जो मौसम है वो बहुत मजे का होता है और कहते हैं इस मौसम में जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। वैसे हम बहुत मसरूफ होते हैं, अभी तो फिलहाल हम फ्री थे, अभी फिर हमारे ड्रामे प्ले शुरू हो जाएंगे, फिर हम वहाँ पे मसरूफ हो जाएंगे। अभी बस टाइम मिला है तो दोस्तों के साथ बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत कम टाइम होता है हमें मिलता है कि उन्हें हमने थिएटर भी करना है, रिहर्सलें भी करनी है, अकेडमी में भी जाना है, तो ये बहुत किस्मत से मिलता है हमें ये टाइम ना दोस्तों के साथ। तो दोस्तों के साथ वक्त गुजर जाए उसके क्या ही कहने, ये कहना दीदार मुल्तानी के। इसके साथ साथ हमारे साथ और आर्टिस्ट भी मौजूद हैं। पिंकिश, कैसा लग रहा है अपने दोस्तों को घर पर इनवाइट करके चाय के हवाले से? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, कोमल जी की और हमारी दीदार जी हैं और हमारी एक और बाजू हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने इनको एक फ़ोन किया, फ़ोन पे आ गई हैं और हम लोग घर के अंदर छोटा सा खाना बनाए, कुकिंग की है, पकोड़े वगैरह और मीठी रोटियाँ, चाय, ये सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगा और इनका मैं थैंक्स करती हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा वक्त जो है वो चाय के हवाले से दोस्तों के हमरा यहाँ पर गुजारा जा रहा है। मुल्तान के आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो इस मौसम में खूबसूरत तरीके से फनकार भी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। वसीम शहजाद, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान मैपको के मुताबिक जनूबी पंजाब में बारिशों से बिजली की फराहमी मुतासर। मैपको रीजन के 80 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासर हुई। मुल्तान, खानेवाल, डीजी खान, विहाड़ी सर्कल्स के फीडर से बिजली मुअत्तल रही। बहावलपुर, रहीम खान और बहावल नगर सर्कल्स के फीडर्स भी बारिश से बंद हो गए हैं। तो आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि तर्जमान मैपको के मुताबिक जनूबी पंजाब में बारिशों से बिजली की फराहमी मुतासर। डीजी खान में मैपको रीजन के 80 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासर हुई। खानेवाल, मुल्तान, डीजी खान, विहाड़ी सर्कलों के फीडर से बिजली मुअत्तल। बहावलपुर, रहीम खान और बहावल नगर सर्कल्स के फीडर्स भी बारिश से बंद हो गए। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में बारिशों से बिजली की फराहमी मुतासर हुई है। तर्जमान मैपको के मुताबिक मैपको रीजन के 80 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासर हुई, जबकि मुल्तान, खानेवाल, डीजी खान, विहाड़ी सर्कलों के फीडर से बिजली मुअत्तल। बहावलपुर, रहीम खान और बहावल नगर सर्कल्स के फीडर्स भी बारिश से बंद। बहावलपुर, रहीम खान और बहावल नगर सर्कल्स के फीडर्स भी बारिश से बंद रहे। जनूबी पंजाब में बारिशों से बिजली की फराहमी मुतासर। मैपको रीजन के 80 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासर हुई। मुल्तान, खानेवाल, डीजी खान, विहाड़ी सर्कल्स के फीडर से बिजली मुअत्तल रही। बहावलपुर, रहीम खान और बहावल नगर सर्कल्स के फीडर्स भी बारिश से बंद रहे। बारिशों की वजह से दरबार सखी सरवर खस्ता हाली का शिकार। निकासियाब का निजाम दुरुस्त न होने से दरगाह खस्ता हाली का शिकार। बारिशों से दरबार सखी सरवर की छतों से पानी टपकना शुरू हो गया। दरबार सखी सरवर की अगबी दीवारों में भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। बात करेंगे इस हवाले से अली मूसा रजा से। अली बताएगा। जी बिल्कुल, सखी सरवर में जो सुबह से लेकर अब शाम होगी मुसलसल बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। सखी सरवर में होने वाली बारिशों की वजह से सखी सरवर दरबार जो मुगलिया दौर में तामीर की गई थी, मुगलिया नक्शो निगारी भी थी, अब वो दरबार हजरत सखी सरवर की छतों से जो पानी टपकना है वो शुरू हो गया है। दरबार हजरत सखी सरवर की अकबी दीवार का कुछ हिस्सा भी गिर गया है। मजीद दीवारों में दरारें भी बड़ी बड़ी पट्टी जा रही हैं, छतें टपकना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर जो मकामी मुजावरान वो शदीद परेशानी का शिकार है कि दरबार हजरत सखी सरवर पर खसूसी तवज्जो नहीं दी जा रही। तो मजीद उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जनाब अली, इस वक्त हम दरबार शरीफ के अंदर मौजूद हैं। बरामदे में जो बड़ा बरामदा है, दरबार शरीफ के सामने जो बरामदे हैं अस्कर इनसे पानी बह रहा है। ये ऊपर जो है ना छत मजबूत नहीं है, इनकी ग्राउंडिंग नहीं हुई है, लेकिन अंदर से भी इन दरबार के कमरों में भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पानी बह रहे हैं। उसके बाद दरबार के पीछे जो है एक दीवार है वो गिर रही है, दरारें पड़ रही हैं।
مہربانی کر کے ان کو دیکھا جائے. یہ بہت مغلیہ خاندان کی عمارت ہے, مغلیہ خاندان کے دور میں بنائی گئی ہے. یہاں کشیدہ کاری, لکڑی کی کشیدہ کاری بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہے, لیکن یہ سارا پانی اس نیچے والی چھت جو ہے نا, کشیدہ کاری ہے نا, اس سے بہ رہا ہے. یہ چھتیں بالکل ناکارہ ہو چکی ہیں. ہم اقتدار اپنا اعلیٰ افسران سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے دربار کی مرمت فوراً کی جائے. جی بالکل, دربار حضرت سکھ سرور کی چھتیں اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے, جو ابھی تک بھی ٹپک رہی ہیں کہ اس میں سے پانی جو ہے وہ بہ رہا ہے. دربار حضرت سکھ سرور کی جو چھتیں تھیں وہ مغلیہ دور میں تعمیر کی گئی تھیں. تو یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دربار حضرت سکھ سرور کی چھتوں سے پانی جو ہے وہ ٹپک رہا ہے, دراڑیں بھی پڑ رہی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مغلیہ دور میں جو بنائی گئی تھی نقش و نگاری, اس سے جو ہے پانی یہ بہ رہا ہے. تو جس سے جو دربار حضرت سکھ سرور کی مغلیہ دور کی نقش و نگاری بھی انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے. یہاں پر بڑی بڑی دراڑیں پڑتی جا رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دربار حضرت سکھ سرور پر چھتیں جو ہے نا ٹپکنا شروع ہو گئی ہیں. دربار کا عقبی حصہ بھی بہت حد تک متاثر ہو گیا ہے بارشوں کی وجہ سے. یہاں پر جو چھتیں ہیں وہ انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے دربار حضرت سکھ سرور جو مغلیہ دور میں تعمیر کی گئی تھی وہ انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے. یہاں پر جو مقامی لوگ تھے وہ شدید پریشانی کا شکار ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ محکمہ اوقاف جو ہے دربار حضرت سکھ سرور کی جو یہ مغلیہ دور کی عمارت ہے, اس پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے اس کی چھتوں کا کام مکمل کرے, اس کا نکاسی آپ نظام بہتر کرے تاکہ ان بارشوں کا, اور اس کو خصوصی طور پر چیک بھی کی جائے. دربار خستہ کا شکار ہو گیا ہے. بہت شکریہ علی موسیٰ, آپ نے اپڈیٹ کیا سوال آنا اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگے تو ہر شخص کا دل کرتا ہے کہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں, دفتر سے باہر نکلے. تو کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں جبکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روڈ پر آ جاتے ہیں. آج روڈ پر آنے کے بعد ایک خوشی کا احساس بھی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی جو ہوا ہے اس کو انجوائے بھی کیا جا رہا ہے. یہ میری صورتحال نہیں بلکہ ملتان کے اگر ہم عام شہریوں کی بات کرتے ہیں تو شہری اپنی موٹر سائیکلوں پہ دوستوں کے ہمراہ گھروں سے باہر نکلے ہوئے. کچھ منچلوں کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں. ایک خوشی کا جو سما ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور پرکیف قسم کا منظر جو ہے وہ ملتان میں موجود ہے. چاہے قدرت کی بات ہو, چاہے یہاں پر بنائی ہوئی چیزوں کی بات ہو یا نیچر کی بات ہو, تمام چیزیں جو ہیں وہ خوشگوار قسم کے لمحات جو ہیں ملتان کا موسم انتہائی خوشگوار ہے. ملتان کے شہری موسم کو انجوائے کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ نمائندہ روحی وسیم شہزاد بھی موسم کو بہت انجوائے کریں. وسیم, آپ نے بتایا کہ یہ جو سپیل ہے بارشوں کا یہ 3 سے 4 روز تک جاری رہے گا, تو آگے کتنے سپیلز متوقع ہیں؟ محکمہ موسمیات کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے شہر اولیاء کے بارے میں؟ اگر ہم اوورآل بات کریں تو سیلاب کے بھی ممکنہ خدشات جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں اور دریائی جو علاقے ہیں یہاں پر وہ بھی ان میں پانی کی مقدار جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. لیکن اب اگر یہ بارش کا سلسلہ مزید 2 دن تک اگر مزید جاری رہتا ہے تو اس سے کافی نقصان ہونے کا بھی خدشہ ہے. لیکن دیکھتے ہیں ضلعی انتظامیہ اس حوالے سے کیا کارکردگی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو واسا ہے جس پر سارا جو ہے اس کا ملبہ ڈالا جائے گا, واسا اس حوالے سے کیا کہتا ہے. واسا نے پہلے بھی ضلعی انتظامیہ کو اس بار کی بارہا نوٹس دے چکا ہے کہ ہمارے پاس مشینری جو ہے وہ کم ہے, ہمارے پاس سٹاف کم ہے, لیکن ہم کوشش مکمل کر رہے ہیں کہ شہر اولیاء کے جو روڈ ہیں ان پر پانی. وسیم, یہ بتایا گیا کہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے, تو یہ بتایا کہ ٹریفک کی روانی کس کس جگہ پر متاثر ہے اور وہاں سے ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا تیاری کی گئی ہے؟ جی بالکل, اگر بات کریں حسینہ گائی روڈ کی تو حسینہ گائی روڈ شہر کی اہم شاہراہوں میں شمار ہوتا ہے, لیکن اس روڈ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہے. اس کے بعد رشید آباد کا روڈ ہو, ایس پی چوک ہو یا کینٹ بازار ہو, تمام روڈ ہی جو ہیں اس حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور سست روی جو ہے ٹریفک کی یہاں پر بہت زیادہ ہو رہی ہے جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اگر اس حوالے سے بات کرتے ہیں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تو کسی قسم کا کوئی اسکیجول جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا, کوئی ٹریفک وارڈن جو ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی اسکیجول نہیں دیا گیا ہے. بہت شکریہ وسیم شہزاد, آپ موسم بھی انجوائے کر رہے تھے اور ہمیں تفصیلات سے بھی آگاہ کر رہے تھے. میار خان میں ضلع بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر 33 دکانوں سے آٹا غائب. آٹے کی عدم دستیابی سے شہری پریشان ہیں. شہری کہتے ہیں کہ حکومت برائے نام ریلیف پیکج دے رہی ہے.
रहीम यार खान के शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर से सस्ता और वाफिर मिकदार में आटा खरीदना ख्वाब भी बनकर रह गया। जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का महदूद स्टॉक 33 दिनों से खत्म हो गया, जिसके बाद शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ मायूस लौटना मामूल बन गया। शहरी मजबूरन ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने लगे। मैंने भी 3-4 स्टोरों पे पता किया, आटा नहीं मिल रहा। इधर भी आया, अब इधर भी नहीं आटा मिल रहा। बारिश में गिला होके आया हूँ, आटा लेने, आटा मिला भी नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की बरवक्त फराहमी की पुरजोर अपील की है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही रेमियार। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रोड प्रोजेक्ट पेट्रोलिंग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर शाहराहों को मजीद महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म। ट्रैफिक कवानीन के नफाज के लिए पेट्रोलिंग ट्रैफिक पुलिस मिलकर काम करेंगे। एसपी के मुताबिक प्रोजेक्ट का नफाज 1 सितंबर से 30 नवंबर तक के लिए होगा। एसपी मोहम्मद शरीफ का बताना है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत हादसात की रोकथाम के लिए फराइज सौंपे गए हैं। प्रोजेक्ट का दायराकार पंजाब भर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। एसपी का मजीद कहना है कि 15 दिन पुलिस यूनिट्स ट्रैफिक कवानीन की आगाही मुहिम चलाएंगे। मुहिम के दौरान मोबाइल एजुकेशन यूनिट्स को हिस्सा लेने की हिदायत की है। तो आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि बहावलपुर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रोड प्रोजेक्ट पेट्रोलिंग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर शाहराहों को मजीद महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म। ट्रैफिक कवानीन के निफाज के लिए पेट्रोलिंग ट्रैफिक पुलिस मिलकर काम करेंगे। एसपी का कहना था कि प्रोजेक्ट का निफाज 1 सितंबर से 30 नवंबर तक होगा। एसपी मोहम्मद शरीफ ने मजीद कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत हादसात की रोकथाम के लिए फराइज सौंपे गए। प्रोजेक्ट का दायराकार पंजाब भर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। 15 दिन पुलिस यूनिट्स ट्रैफिक कवानीन की आगाही मुहिम चलाएंगे। आपको बताएं बहावलपुर में हालिया बारिशों के बायस कपास की फसल पर जस्ट और गुलाबी सुंडी के हमले का खदशा। महकमा ज़राअत के माहिरीन कहते हैं कि जिन इलाकों में ज्यादा बारिश हो वहां काश्तकार ज्यादा देर पानी अपनी फसल में जमा ना रहने दें। ये रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, जो आइंदा 2 से 3 रोज तक जारी रह सकता है। महकमा ज़राअत तोसी के ज़राई माहिरीन का कहना है कि काश्तकार कपास के खेत में पानी का ज्यादा देर जमा ना रहने दें और निकासी का बंदोबस्त करें। मानसून की कोई बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं आई और एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 दिनों में बारिश आ सकती है। तो हमारी जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश होगी कि अगर ज्यादा बारिश आए तो फसल कपास में से पानी के निकास का फौरन इंतजाम किया जाए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी मोहम्मद शफीक का कहना था कि बारिशों के बाद कपास की फसल पर जेस्ट और गुलाबी सुंडी के हमले का खदशा मौजूद है। काश्तकार अपनी फसल की पेस्ट काउटिंग करते रहें। बारिशों के मौसम के बाद हमारी फसलों पे खतरा है कि जेसिड का खतरा बढ़ सकता है और आने वाला दिन जो हमारा सितंबर के दिन है उसमें पिंक बोलवर्म का भी खतरा है। तो मेरी जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि अपनी फसल की बाकायदगी से पेस्ट काउटिंग करें और जब भी किसी भी कीड़े का हमला ETL पे मिले तो फौरन उस पे स्प्रे ज़राई माहिरीन के मशवरा से जरूर करें। ज़राई माहिरीन का कहना है कि जेस्ट और गुलाबी सुंडी के हमले और मुआशी नुकसान तक पहुँचने की सूरत में काश्तकार माहिरीन की मुशावरत से स्प्रे करें। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ अतल अशारी, बहावलपुर। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।